हेलो एंड वेलकम बैक। वीक थोड़ा सा डाइसी रहा। बहुत ऑफ हाई ट्रेड किया। बैंक निफ्टी अलग ही डायरेक्शन में ट्रेड कर रही थी और निफ्टी कहीं भी सपोर्ट लेता हुआ नहीं दिखा। फ्राइडे इतना नेगेटिव नहीं था, बट ट्रम्प टैरिफ जिस तरीके से अनाउंस हुआ और जिस तरीके से सारी चीजें डेवलप हुई, कहीं ना कहीं मार्केट ने भी उसी तरीके से रिएक्ट किया। बट समहाउ आई एम कंफ्यूज्ड एंड आई बिलीव आप लोग भी उसी तरीके से कंफ्यूज होंगे कि ये सब तो पता था, तो क्यों हुआ, कैसे हुआ। और जब भी कंफ्यूजन में होते हैं तो एज वी ऑलवेज डू इट, एक एक के पास जाते हैं। गुड Hello, आफ्टरनून। good afternoon, good afternoon. How are you? I am good and I'm happy that I am disturbing you on a Saturday, which is an off day. But जरूरी था क्योंकि कल Right. due to some reasons I could not shoot. Yeah. हुआ क्या है? Rachit, हुआ ये है basically this week what has happened is reaction to tariffs. Okay. Now one might wonder why such a strong reaction when you knew this was coming. अप्रैल से ही पता था ये आ तो रहा ही है. 25 आ रहा है, 50 आ रहा है और 50 भी आ रहा है, ये भी काफी टाइम से पता था. तो ऐसा क्यों रिएक्शन ऐसा हुआ? आई थिंक इट वाज काइंड ऑफ वारंटेड. एक रिएक्शन आना था जब वो एप्लीकेबल हो जाएगा टैरिफ तो बिकॉज डोनाल्ड ट्रम्प हैज बीन सो बैक एंड फोर्थ ऑन हिज वर्ड. सो समहाउ देयर इज ऑलवेज अ लिटिल होप कि ये लास्ट डे तक एक एक्सटेंशन आ जाए या बोल दे कि नहीं 50 की जगह, बिकॉज इंडिया से हमारी कुछ बातें चल रही हैं, फाइनलाइज होने तक अभी 25% ही रहेगा. एक एक वो आई थिंक समहाउ in your mind there is always something there when when the person making the decision is so volatile and unstable, if I may say so. But basically when it has finally come into place, uh, uh, we people have realized that ab to ye aa gaya hai. Now ab kya? So last week a lot of claims or a lot of uh, demands have been made to the finance minister, to the as for relief to the affected sectors, because now of course this is always there's always a thing that when your business is impacted, you want some incentives or you want some tax relief or something from the government. So for that you will paint a grim picture. So a couple of articles that I read about areas that are or sectors that are impacted, they are painting a picture that they are completely they were dependent on the US, and now their goods are very incompetitive over there. So they need to create different markets and all that. So वो सारी चीजें हैं अब है. But in terms of government, now in the hindsight, अगर आप देखें ये जीएसटी का पूरा उलटफेर जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया लास्ट वीक, हमने जैसे मैंने आपको बोला कि ये जीएसटी अक्टूबर के बाद अगर एप्लीकेबल होगा तो हमारी डिमांड हिट करेगी, festive demand. If you know that this week they have already announced that they are planning to get this entire thing on 22nd September rather than October, so that the festive demand does not get hit. It's another very very good move by the government. Okay, आप देखिए जो न्यूज आई है, इंडिया इज टारगेटिंग 40 different nations for for promotion of their textile business. The GST whole revamp, if I may say so, or the whole GST reform, what they are calling it, is targeted to increase the consumer demand in India. ओके कि वो डिमांड जो अमेरिका के, मतलब ठीक है, हम मे भी हम अगर 100 यूनिट बेच रहे थे तो 100 यूनिट नहीं बेच पाएंगे, उसकी कुछ डिमांड दूसरी कंट्रीज में खपत हो जाएगी, कुछ इंडिया अब्सॉर्ब कर लेगा. और 100 यूनिट का ऐसा तो नहीं है 100 का जीरो हो जाएगा, 100 का 20, 25, 30 तो होगा ही. तो मतलब द होल सी ऑल इन ऑल मेरे हिसाब से गवर्नमेंट इज टेकिंग स्टेप्स टू काइंड ऑफ set off or kind of compensate the loss that these companies are going to make because of the tariffs. Okay, this
in my opinion, translates to one thing, that we are not budging from the Russian oil thing. ये पूरा 50% का ये is a penalty for buying oil from Russia, and government is not budging on that, which is again a big positive for India. Okay. अब क्या है, the stance that government is taken is like, लगा लो, तुमको जो लगाना है लगा लो, हम देख लेंगे. ठीक है, तुम्हारे मार्केट में माल नहीं बिकेगा ना, कोई बात नहीं, हम दूसरे मार्केट में माल बेच लेंगे. सो ये स्टांस है गवर्नमेंट का, जो मेरे हिसाब से इट कैन बी शॉर्ट टर्म लिटिल प्रॉब्लमैटिक फॉर इंडिया. एक इमीडिएट हिट आएगा, बट इट विल गेट अब्सॉर्ब्ड. मतलब आप समझिए, एक अगर कोई चीज हिट आता है, कोई चीज अगर आप किसी चीज का प्रोडक्शन कर रहे हैं और उसका कॉस्ट बढ़ जाता है, तो आप एक एडजस्टमेंट पीरियड लगता है कि आप वो कॉस्ट को फैक्टर इन करके अपना धीरे धीरे प्राइस बढ़ाइए और फिर वो डिमांड, बट इवेंचुअली वो वी रीच स्टेटस को. तो हो सकता है कि आप समझिए 2 क्वार्टर 4 क्वार्टर खराब जाए इन पर्टिकुलर कंपनीज को, बट इवेंचुअली वी विल फाइंड प्लेस. इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड. So it's like we are in a phase of transition and we are looking for alternate markets, and teething issues जो initially आते हैं looking into different markets and exploring and experimenting, that might take a quarter or two, but eventually we are clear, and this time we are like, bring it on, we are ready to face whatever challenges you're throwing on us. मेरे हिसाब से रचित, the certainty that we have got कि यूएस टैरिफ अब कितना होगा, मतलब आफ्टर मंथ्स एंड मंथ्स ऑफ बीइंग वेरी अनसर्टन कि क्या लग रहा है. इनफैक्ट हमने इन्हीं वीडियो में डिस्कस किया है, कुछ पता नहीं है, कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ. तो वो जो अनसर्टेनिटी है वो निकल गई है. नाउ वी नो दैट इतना लग रहा है, तो नाउ वी कैन वर्क ऑन आवरसेल्व्स कि भाई हमें क्या करना है इस सिचुएशन में. तो एटलीस्ट दैट क्लैरिटी इज देयर. दैट इज बिग पॉजिटिव. ओके. Markets, what it has reacted is because the immediate, क्योंकि जो reaction है, this is only taking into account the short term inconvenience that we will face. तो अगर आप पिछले ये वीक का मार्केट देखें, मंडे देखिए शॉर्ट वीक था एक, तो मंडे टू फ्राइडे में 4 ट्रेडिंग सेशन थे, 25,000 कुछ था मंडे, 25,000 odd, and we closed. I was telling you that 24,600 is something that I see as a very strong support. Last 2 days, even that got broken. If you see 8,000 or 8,500 crores FII selling was there in the last day itself. तो 24,400 पे 426 क्लोजिंग हुई है इस वीक की, which is technically suggesting now we have taken into a lot. Tariff का जो effect है, we have taken into account. And in my opinion, we have done a little exaggerated kind of reaction also. So अब मुझे ये नहीं लगता कि further downside इस account पे और होना है. Also, technically speaking, we are about 400 points close to our 200-day moving average. 24,075 या कुछ ऐसे है अपना 200-day moving average, which technically should be a very very strong support. तो further bad news नहीं आती है तो हम वहां पहुंचेंगे नहीं, और अगर कोई bad news आती है तो I am looking that as a very strong support. तो मुझे 24,075 तो टूटता हुआ नहीं दिख रहा है. ओके, टूट जाए, कुछ बहुत खराब आ जाए, टूट जाए, तो we can discuss on that. But in the wake of current news, I don't see that breaking. So in that case, are we preparing ourselves for an upside now? Yeah, so I'll tell you briefly about the week to come. Week to come again, I expect it to be volatile. Okay, but purely on the basis that we have gone down a lot and a little exaggerated. I feel that next week we are going to see upside. We are not going to see downside. We are going to see upside. मेरे को नहीं लगता कि और फर्दर कुछ इम्पैक्ट आना है. जो आना था आ गया है. 4 दिन का रिएक्शन हुआ है, एंड FIs have sold a lot
एक्चुअली ओवरऑल अगर आप पोर्टफोलियो भी देखें तो एफआई ने मतलब एफआई के बाद पास अब कुछ बचा ही नहीं है, 12-15% बचा है। तो अगर फर्दर सेलिंग करते रहेंगे दे आर नॉट गोइंग टू एट नो पॉइंट दे आर गोइंग टू ब्रिंग द पोजीशंस डाउन टू 5% और जीरो। तो वी आर नॉट लुकिंग एट अ लॉट ऑफ एफआईआई सेलिंग प्रेशर। एंड साथ साथ आप ये भी देखिए कि अगर 8,000 करोड़ का सेलिंग था एफआईआई का, तो डीआईआई का बाइंग 11,000 करोड़ था। तो सामने हमारे इंस्टीट्यूशंस भी खड़े हैं कि ठीक है, वी आर देयर टू बाय। Sorry, so in that case, what would be the level that you're suggesting for the week to come? रचित, डाउन साइड में मेरे को 24,075 लगता है दैट 200 डे मूविंग एवरेज वुड बी माय डाउन साइड लेवल। उससे नीचे नहीं जाना चाहिए। मतलब इफ एनीथिंग टर्न्स, सी अ लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग, द इंडिया चाइना टॉक्स आर हैपनिंग, ओके। आपको पता है जापान वाज रेडी टू फर्स्ट डिस्कस विथ अमेरिका अबाउट देयर ट्रीटी एंड दे शेयर्ड समथिंग, द टर्म्स वर सो ऑब्नॉक्शियस that the Japanese Prime Minister has called off the talks. Okay, so ये all of this and if you अभी 1 घंटे पहले ही US Supreme Court की ruling आई है that not Supreme Court, there is a court in US which has ruled that the tariffs that Trump has put on India is through emergency route and illegal. ये रूलिंग आ गई है। ये कितना इम्पैक्ट करेगा नहीं करेगा या चेंज लाएगा नहीं लाएगा, वी डोंट नो दैट, बट वी नो वन थिंग दैट यूएस कोर्ट की रूलिंग आ गई है इसके अगेंस्ट। तो दिस बिल्ड्स अ स्ट्रॉन्ग ओपिनियन इन पब्लिक और अदर मार्केट्स दैट व्हाट दे आर डूइंग इज इलीगल, व्हाट दे आर डूइंग इज नॉट फेयर। जापान taking off the talks off the table, that is one thing. India China in 10 years of Jinping's rule पहली बार actually ऐसी talks हो रही है इंडिया और चाइना के बीच में, so that is one thing. President Putin has committed to come to India in December for talks. So all of this is is kind of if not anything substantial, I would say that is something that would work or gives a hope of something positive coming in with this whole US tariff thing. So in that case, what is the upside that we are expecting? Now let's talk business. 24,075 is the bottom. Right. What about the upside? देखिए रचित, I'll be very honest with you. मेरे को 24,600 पे बहुत भरोसा था, वो टूट गया। तो अब मुझे जब तक वो पार करके सस्टेन नहीं करता है ना, मुझे फर्दर अपसाइड नहीं दिखता है। ओके, सो वी आप समझिए मंडे, अगर मंडे 200 पॉइंट की गैप अप हो जाती है निफ्टी पे और पूरा दिन मेंटेन कर लेता है 24,600 के ऊपर, देन वी कैन लुक एट 25,000 फॉर द रेस्ट ऑफ द वीक, up to 25,000 for the rest of the week. But at any given point of time, if it is not sustaining 24,600, तो मुझे मतलब अपसाइड एज सच नहीं लगता है। प्योरली ऑन द ट्रेड बेसिस अगर देखें तो देखिए टेक्निकली मार्केट्स पॉजिटिव में नहीं है, जितना सेलिंग प्रेशर क्रिएट किया गया है। ओके, इट मे बी इन ओवरसोल्ड पोजीशन जिसकी वजह से थोड़ा अपसाइड आ जाए, शॉर्ट कवरिंग आ जाए, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। बट अगर 24,426 से 200 पॉइंट खींचता है एक शॉर्ट कवरिंग पे, तो उसको सस्टेन करने के लिए तो और पावर चाहिए ना मार्केट को। सिर्फ शॉर्ट कवरिंग के बेसिस पे रचित, आई डोंट एक्सपेक्ट मार्केट टू सस्टेन दैट लेवल। वी विल नीड सम गुड न्यूज, सम पॉजिटिविटी फॉर markets to sustain above 24,600. शॉर्ट कवरिंग आएगी, ये मुझे लग रहा है, आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग बिकॉज वी आर ओवरसोल्ड। शॉर्ट कवरिंग आएगी, बट आप समझिए सिर्फ शॉर्ट कवरिंग एक 200 पॉइंट की रैली दे सकती है जो एक दिन या आधा दिन लास्ट करेगी।
एक पूरे वीक के लिए उसको सस्टेन करना मुश्किल होएगा सिर्फ शॉर्ट कवरिंग पे। Okay. So, what we have for the week to come is 2475. 24,075 is the strong support, which we don't see Nifty breaching as of now. If we sustain above, if and whenever we sustain in the week, in the coming week, above 24,600, or we close above 24,600, then 25,000 is on cards. यस 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 एब्सोल्युटली। सो वी आर, मतलब टेक्निकली मैंने आपको पूरे 1000 पॉइंट का वो बता दिया है, विच इज वेरी वाइड रेंज, बट हम ऐसी स्टिकी जोन में हैं, वो जो 200 पॉइंट की ऐसी स्टिकी जोन में है कि इस 200 पॉइंट के नीचे हैं तो इस तरफ है, ऊपर हैं तो उस तरफ, तो हम बिल्कुल बीच में हैं। तो हम वी विल, यू नो, मंडे विल प्रोबेबली डिसाइड वेयर वी आर गोइंग इन द रेस्ट ऑफ द वीक। अगर मंडे कुछ डिसाइसिव ओपनिंग में होती है या ऊपर या नीचे, मतलब किसी भी साइड, मंडे विल डिसाइड। बट अगर मंडे भी, अगर हम इस रेंज में, फॉर एग्जांपल मंडे कुछ नहीं होता, आप समझिए 20-30 पॉइंट ऊपर नीचे, 50 पॉइंट ऊपर नीचे, वही चलता रहता है 24,400-500 के बीच में, तो जब तक इस छोटे रेंज के बाहर नहीं निकलेंगे तब तक मैं आपको ये नहीं बता सकता हूँ कि वो अपसाइड की वो है या नीचे की वो है। It's a very tricky and unique kind of situation that we are in this week. ठीक है, got your point. कई बार it becomes difficult looking at the technicals as well, that how the markets will behave. Anyhow, we have 2 days with us. गणपति उत्सव चल ही रहा है, गणेश जी की पूजा के दौरान उनको थोड़ा सा और बोल देंगे कि भाई साहब ऊपर खींचो, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। Jokes apart, but ठीक है, we have the range with us, and as always, it was amazing talking and understanding as to where the markets will be headed the next week. And hopefully, if Ganpati listens and 25,000 next week hota hai, to we'll be having a very rejoiced Ganpati Utsav. And looking at the history, out of 6 Ganpati Utsav, we have seen 5 Utsav giving upside movement to the markets. Only one, I believe, 2023 was negative. So चलिए, let's hope for the best कि ये वाला भी ठीक रहे और 25,000 जाके फिर आपसे next week मिलते हैं, और फिर we'll catch up again. As always, it was amazing talking. Have a happy weekend. Thank you. Happy weekend too. Bye bye. Bye bye.